Hello students, I am Rekha Davar, your science teacher. Today we are going to learn class 9 science chapter number 1, that is matter in our surrounding. What is matter? Matter definition has given by scientists is different. The old scientists have given, or the old people have assumed something different definition for matter. Today I am going to explain you each and everything. First of all, variety of objects are matter, and how we classify them. We classify them by their shapes. All the matter, they are having different kind of shapes, they are having different kind of sizes also, even their texture, some are rough, some are soft, so they all are having different kinds of texture. These are classified from these three properties: their shape, their size, and their textures. Now when we are talking about everything in the universe, they are made up of some material, and this material they considered as matter. Everything in the world, in the universe, is made up of matter. Now matter, we can see, we can feel, so we can see, we can taste whatever we are eating, or they are also a kind of matter. So we can taste, even we can smell it, we can smell the fragrance, whatever fragrance we are feeling, that is also matter. Now we can feel. What is matter? Matter is considered as the thing which has mass and volume. Which has mass or volume, they are considered as matter. Now matters are classified on their properties. Now I am going to tell you what are the properties. 1. Now we are going to understand about the characteristics of matter. What are the characteristics? Every matter is having their own character. They show that character by their physical properties or by their chemical properties. Right now we are going to understand about it only. Every matter, they are having space between them, and according to space we can classify them. All the matter in the world, they are having space between them. Next one, they are having continuous movement. All the particles of the matter, they are in continuous movement. They never used to stop themselves for that, and they possess some kind of energy. When they are having continuous movement, then definitely they are generating energy, and this energy is known as kinetic energy. How it is generating? As the temperature rises. As the temperature rises, मतलब जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता जाता है किसी भी मैटर का, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर वो होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें जनरेट करती है. कैसे होगा? टेम्परेचर का बढ़ना होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उसके इफ़ेक्ट्स को दूसरी चीज़ों में चेंज करेगा. ये जो डिफरेंट चेंजेस होंगे वो होते हैं काइनेटिक एनर्जी के. तो जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे का वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी. मतलब दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी. अगर टेम्परेचर अपना नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल जाता है या डिक्रीज टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट वन, दैट द टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. They may ask you in exam also. Define diffusion. What do you understand by diffusion? Give an example of diffusion like this. So matters are having tendency of diffusion, and why they diffuse? The reason of diffusion is that the intermolecular space is there. As intermolecular spaces are there, मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेस होती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो डेफिनेटली स्पेस मिलती है बीच में, पार्टिकल्स के बीच में मूव करने के लिए स्पेस मिलती है. तो जैसे उसको स्पेस मिलने लगती है तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है डिफ्यूज़ करने की, मतलब रिलीज़, हटा देने की.
Next one is intermolecular particle of two different types of matter is diffusion. Intermolecular particles diffuse क्यों होते हैं? जब आपस में कहीं पे भी दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस मिलती है तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा. अगर मेरे को जाना है और मेरे पास में बहुत सफिशिएंट स्पेस है, आई कैन मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. बट अगर वहीं ट्रैफिक का कंजक्शन होगा तो कैसे जाना रहेगा? मैं मेरे आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अगर है एंड आई हैव टू मूव, तो फिर मैं कैसे मूव करूँगी? अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक मूव करूँगी. ट्रैफिक जैम है तो आई विल मूव स्लोली लाइक दैट. बट इफ़ इन केस रोड इज़ टोटली एम्प्टी और हार्डली फ्यू व्हीकल्स आर देयर वेयर आई कैन मूव, जहाँ मैं आराम से मूव कर सकती हूँ, तो उस कंडीशन में मैं आराम से निकल के जा सकती हूँ. वहाँ मेरे को कोई भी चीज़ के लिए ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा. सेम वे जब हमारे यहाँ पे मैटर के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा रहती है तो क्या होगा? जैसा स्पेस बढ़ता जाएगा वैसा वैसा डिफ्यूज़न की रेट इंक्रीज़ होती जाती है. डिफ्यूज़न आराम से हो सकता है वहाँ पे. डिफ्यूज़न का और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में एक रिलेशन होता है. ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ही डिफ्यूज़न पॉसिबल होता है. Next one is force of attraction. What is force of attraction? Two molecules are having force of attraction. कोई भी दो molecules होते हैं उनके बीच में attraction होता है, पर कैसे होगा? दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक दूसरे के लिए फोर्स अट्रैक्ट करेंगे वो, एंड उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दैट, उसमें जो लॉ ऑफ फोर्स लगता है दैट वन इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स दे आर pressing each other, they are forcing some, they are giving some force, and this force is known as intermolecular force of attraction. Now I am going to continue the same. Now we are going to learn about states of matter. In the earlier classes you must have studied, but again I am going to take this topic because it is very important topic in class 9th. First of all, state of matter. You are aware three types of matter we are having, that is solid, liquid and gas. I am going to explain you right now about solid. Solid, they are having higher density. Higher density, what is the meaning of density? Density means mass per unit volume of any substance is density. The formula we are putting, that is density is mass per unit volume. Its solids डेंसिटी इज़ ऑलवेज हायर. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है या हायर होती है, उस केस में हमेशा जो भी मैटर होता है वो अगर डेंसिटी हायर है तो सरफेस में हमेशा नीचे रहेगा. लाइक आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. यू आर मेकिंग एनी जूस और यू आर मेकिंग एनी मिल्क शेक और लाइक दैट. सो व्हेन यू आर एडिंग शुगर, आप जब उसमें शुगर ऐड करते हैं तो शुगर हमेशा जब भी आप उसके अंदर डालेंगे तो वो सबसे पहले जाके बॉटम में या सरफेस पे नीचे जाके सेटल होती है. बट अगर हम आइस को देखते हैं सेम उसमें, तो आइस क्या होती है? वो फ्लोट होती है. मतलब यहाँ पर ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि शुगर, व्हेन वी आर पुटिंग शुगर इन एनी ऑफ द जूस और एनी मिल्क शेक और एनी लिक्विड, सो इट सेटल्स. मीन्स उसकी जो डेंसिटी है वो हायर है, इसके लिए वो बेस पर या सरफेस पे जाके सेटल होती है. और डेंसिटी आइस की हमेशा कम होती है, इसके लिए वो हमेशा उसके ऊपर फ्लोट होती है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकेंड one. They do not diffuse. Why they are not diffusing? This I'll give you reason at the end once again. They do not diffuse, or hardly they diffuses. Hardly. The diffusion rate is very low for the solids. Now the next one is they are rigid. Why they are rigid? The reason is, now you can see the diagram I have made here. The molecules of the matter, they are totally compactly placed, so they are not having intermolecular space to move. So that is the reason they are rigid. They cannot change their shape until and unless you are giving the external force on solid. Under external force only they can break.
they can break down when you are giving some external force. They can break, but they cannot change their shape. They can break down. Next one, then they are incompressible. Why incompressible? Do you know what is the meaning of compressible? Compressible मतलब when we are प्रेस करते हैं हम उसको तो वो प्रेस हो जाता है. लाइक आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ दिस वन इज स्पॉन्ज. स्पॉन्ज को आप प्रेस करते हो ऑल्दो इट इज़ सॉलिड, पर लेकिन वो क्या करता है, उसका प्रेस करने पे शेप को चेंज करता है. अगेन वो रीगेन कर लेता है जब आप उसका एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं. तो यहाँ पर जो है वो उसमें सॉलिड में इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, मतलब वो प्रेस नहीं हो सकता, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस करना मतलब गिविंग सम प्रेशर एंड उसको फोर्स अप्लाई करना और उसका फिर उसके कारण शेप चेंज हो जाना, इस कंप्रेसिबिलिटी. नाउ दे आर, जब कंप्रेस नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका शेप एज इट इज़ रहेगा, शेप चेंज नहीं होगा उसका. आप कितना भी उसको शेप चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे उसका शेप चेंज नहीं होगा. अब जब शेप चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट हो जाएगा. वॉल्यूम सॉलिड्स के हमेशा डेफिनेट ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज़ उसका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है या उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, उसका शेप डेफिनेट है, अंडर प्रेशर वो चेंज नहीं करता है. आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, दीज आर सम स्पेशल एग्जांपल. शुगर एंड सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट आप किसी भी यूटेंसिल में डालेंगे, किसी भी डब्बे में अगर आप डालते हैं तो वो हमेशा शुगर या सॉल्ट उसी यूटेंसिल का शेप ले लेते हैं. जबकि शेप किसी यूटेंसिल के लिए लेना ये सॉलिड की प्रॉपर्टी में नहीं होता है. बट शुगर एंड सॉल्ट स्पेशल वो सॉलिड्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं लेकिन अपना शेप यूटेंसिल के या जार के या बर्तन. आपने हमेशा देखा होगा घर में मम्मा जब भी डालती है सॉल्ट या शुगर को, जिस भी बर्तन के अंदर डालती है वो शेप उसी यूटेंसिल के अकॉर्डिंग या उस जार के अकॉर्डिंग ले लेता है. जबकि सॉल्ट और शुगर तो दोनों सॉलिड हैं और सॉलिड कभी भी अपना शेप चेंज करता ही नहीं है. लेकिन ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें रेयर उसमें आते हैं. नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन इज, after this we are going to come on liquid. So I am going to explain you after this about liquid. हाँ बेटा एक और ले लेते हैं ना. Now we are going to learn about liquid. I am going to tell you the properties of liquid. The properties of liquid are they are having fixed volume. The volume is always fixed. If I am having 1 liter of milk, I am having in a जार, अगर मेरी किसी जार में है और अगर उसको उठा करके आई एम गोइंग टू पुट इट इन अदर जार, उसको उठा के जार में रखूँ, भगोनी में रखूँ, कढ़ाई में रखूँ, इफ़ आई एम चेंजिंग एनी ऑफ द यूटेंसिल्स तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. ऑल्दो मैंने उसका जो है वो यूटेंसिल या जार चेंज कर दिया है. नंबर 2, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. इसका डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता है? आई एम गोइंग टू मेक दिस फॉर यू दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है इसमें लिक्विड्स में वो हमेशा ज़्यादा होती है. इट इज़ ग्रेटर इन लिक्विड एज कम्पेयर विद सॉलिड. सॉलिड कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट. दे आर नॉट रिजिड. ये रिजिड नहीं होते हैं. रिजिड नहीं होते हैं इसके लिए क्या होता है, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं. इसीलिए जब हम जार चेंज करते हैं तो क्वांटिटी तो उतनी ही रहती है, वॉल्यूम उतना ही रहता है, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है क्योंकि ये रिजिड नहीं होते हैं. दे कैन चेंज. ये अपना ये फ्लो हो जाते हैं. आप कभी भी ज़मीन पे डालो तो लिक्विड कोई भी होगा तो वो फ्लो ऑफ हो जाएगा. नेक्स्ट, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं. शेप चेंज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है. तो जब आप प्रेस करते हैं, जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल को फोर्स लगाते हैं तो दे आर ईजीली चेंज देयर शेप. इसके लिए इनको हम फ्लूइड भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन चेंज
नेक्स्ट वन है दे आर हैविंग नो फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनका शेप फिक्स नहीं होता है, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। आप जूस बना रहे हैं, अगर आप मम्मा ने इकट्ठा एक बड़े जग में जूस बनाया है और वो उठा करके ग्लासेस के अंदर डाल रही, तो जग में जो जूस रहता है वो आप ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के शेप का हो जाता है, मतलब शेप उसका चेंज हो जाता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल मतलब जब हम इनको कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जो होता है वो अगर हम गैस से कंपेयर करें तो एज़ कम्पेयर विद गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन करें हम तो सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉरी हाँ इसमें कम होता है और गैस में ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग ऑन रेट ऑफ डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है इसमें हायर होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न का रेट इसमें हायर होता है, एनीथिंग कैन डिफ्यूज़ वेरी इजीली इन लिक्विड। नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी इसकी बहुत लेस होती है, लेस होती है मतलब आप जब भी सपोज़ अगर मैंने चाय बनानी है तो मैंने एक टी पॉट लिया, टी पॉट के अंदर जब मैंने पानी डाला तो तब तक पानी ही है, अगेन पानी अकेला है और उसके अंदर मैंने शुगर डाली है, तो शुगर क्या होगा, शुगर जैसे ही डालती हूँ तो वो सरफेस पर नीचे चली जाती है, मतलब वो जो है उसका डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है, और वाटर का जो डेंसिटी है वो सॉलिड इसका शुगर का ज़्यादा है इसलिए सरफेस पे बैठ गया, लेकिन लिक्विड का कम है तो वो शुगर के ऊपर आ जाता है। अब इसके बाद में अगर मैं टी लीव्स डालती हूँ तो टी लीव्स तो और ऊपर आ जाती है, पहले जब थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहता है तो वो नीचे रहती है, आफ्टर दैट वो डिज़ोल्व होके ऊपर आ जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी और कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आएगा, जितने डेंसिटी लोअर होती है या डिक्रीज़ हो जाती है तो या रेट ऑफ उसका कम हो जाता है डेंसिटी का, तो वो उतना ऊपर की तरफ आने लगती है सरफेस पर, तो डेंसिटी इसकी जो होती है वो लेस होती है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ तो एग्जांपल जैसे होता है वाटर है, लिक्विड है, केरोसिन है, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ liquid. I think you must have understood the concept. Now the last I'm going to explain you about gas. Now we are going to understand about gases, the last state of matter. The intermolecular space between them are very less, so they can compress each other. Whatever characteristics we have learnt in liquid and gas, liquid and solids, उसका बिल्कुल से अलग डिफरेंटली इस पे वर्किंग होता है गैस का। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके उसमें कोई स्पेस नहीं होता है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में। लिक्विड में थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, लेकिन गैस में तो लूजली पैक्ड रहता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्यों होता है, क्योंकि द रीज़न इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है, वॉल्यूम उसका कोई डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट वन, अगर वो नहीं है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो शेप होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में दो बलून्स हैं एंड दोनों का शेप्स अलग है और उसके अंदर मैंने गैस को जो है वो ब्लो करा, मैंने गैस को ब्लो करा तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बलून जो गैस अपना गैस जो है वो उसके अंदर फील होगी और वो बलून का ही शेप ले लेगी। तो गैस जो होता है उसका टेंडेंसी होता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो हमेशा जो भी जिसमें भी आप ब्लो कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ये रिजिड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जैसा सॉलिड सब में ज़्यादा रिजिड होता है उतना ही अपोजिट गैस होता है, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं। ये आराम से फ़्लो हो सकते हैं, लाइक लिक्विड फ़्लो हो जाता है, ये भी फ़्लो हो जाता है। और इसी के लिए अगर ये फ़्लो होता है तो ये शेप चेंज कर लेता है, और जब ये शेप चेंज कर लेता है तो इसीलिए हम इसको फ्लूइड बोलने लगते हैं। इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, एज आई टोल्ड यू कि हम दो डिफरेंट बलून में या कैसे भी डिफरेंट बलून्स के अंदर गैस को अगर हम डालते हैं तो बलून का ही शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेस
कंप्रेसिबल होने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, एलपीजी एंड सीएनजी। आपने एलपीजी सुना है नाम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। नेक्स्ट वन इज़ सीएनजी। क्या ये भी हम घर के अंदर यूज़ करते हैं? हम पर्सनल यूज़ में ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे किचन में ये यूज़ नहीं होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको हम यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स में। Next one, I am coming on the force of attraction between intermolecular space is very low. Next one is the rate of diffusion. Rate of diffusion सब में ज़्यादा होता है, सॉलिड में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा होता है, और गैस में तो सभी में सबसे ज़्यादा, इफ़ यू आर कंपेयरिंग, तो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है गैस के अंदर। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी बहुत लो होती है। इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ अ गैस। हम बलून के अंदर, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बलून जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस से फिल्ड रहते हैं। तो जो भी बलून हाइड्रोजन गैस से फिल्ड होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो दे आर ऑलवेज राइजर्स अप, वो हमेशा ऊपर ही उड़ते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई ऐसा फेस्टिवल होता है, उसके अंदर बहुत सारे बलून्स को बंच बना करके और उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, और वो जो होते हैं वो स्काई के अंदर फ्लाई करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बलून के अंदर जो गैस हमने फील करी है उसकी डेंसिटी बहुत ही लो है, और लो डेंसिटी के कारण वो हायर लेवल पे जाती है। Now coming on the example, I'm giving you example of gas is air। और एयर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमको ऑक्सीजन मिलता है, हमें नाइट्रोजन मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हमें इनर्ट गैसेस मिलती है, और उसके अलावा हमें जो मिलता है हाइड्रोजन मिलता है, अमोनिया मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और आई होप ये सारे जितना भी आज के टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। I'll be back with new concept, new topic in my next video. Till then, all of you, bye.